दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। हाउ यू गाइस डूइंग? बहुत दिनों बाद ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं या पूछते हैं कि व्हाट्स अ प्लान बी? व्हाट एग्जैक्टली शुड बी योर प्लान बी? That's a very open kind of a question. कि what should be your plan B? If you understand the essence of this question, then probably you'll find the answer also. He is not actually interested in what is your plan B. He is more than that interested कि how pragmatic, how practical, and how clear you are in your thought process. Are you prepared for the eventualities? In this uncertainty, how certain you are. In life also, आपका एक प्लान बी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए मैं ये नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा। इट शुड बी देयर। तो वो जानना चाह रहे हैं कि आप कितने क्लियर हैं, आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इवेंचुअलिटीज के लिए, या बहुत ही अनप्रिपेयर्ड काइंड ऑफ पर्सन है। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप बस कह रहे हैं कि हम जो है हम आर्म फोर्सेज में जाएंगे और नहीं जा पाए तो हम तब देखेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये आपको एक इम्प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी बनाता है। अगर आप इसको लिंक करेंगे OLQ से तो प्रॉब्ली इट doesn't prepare you for eventualities, so it makes you an illogical person. Rational नहीं बना रहा है, आपको emotional बना रहा है, so you're driven by emotions. Your reasoning ability is not good. Probably your effective intelligence is also not good. So you are not basically, open by the factor one, if I may say, and you are probably just going by the wind कि ठीक है अभी देखेंगे। ये अभी देखेंगे वाला एटीट्यूड तो आपका सही नहीं है। अभी देखेंगे मतलब कब देखेंगे? So that's why he emphasizes on plan B. It can be anything. Suppose you say, sir, I'm preparing for CAPF, CGL, CPO, whatever examinations apart from armed forces. ठीक है, doesn't matter. What matters is कि how well are you preparing. Now we'll go deeper into it. How many times have you given? What has been the result? You will say I have been giving it for let's say 3 times, 4 times. I couldn't clear the prelims also. Now you will know. You're just talking now. You can say कि I'll become member of parliament. I'm eligible. Yeah, you are eligible. You can become president of the country also. But that doesn't make you a pragmatic person. Plan B should be pragmatic, practical, and rather practicable. And an effort should be going in that direction. ऐसा नहीं कि मेरा प्लान बी ये है बट मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा हूं। क्लियर thought process, clarity. If there is no clarity in your mind, if there is no clarity in your thought process, your plan B will be hazy, or to what we may call as sketchy plan. स्केची प्लानिंग आप समझते हैं? मतलब आपके पास प्लान है बट वो स्केची है। मतलब कहने का ये है कि आप जो है आप हवाई बातें कर रहे हैं, हवा में है। हवा में थोड़ा ना आपको रहना है, आपको बहुत प्रैग्मेटिक, बहुत प्रैक्टिकल बात करनी है। अचीवेबल प्लान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस, योर कैपेबिलिटीज। For example, suppose you're working in a corporate world and you're working, let's say, Capgemini, Cognizant, Infosys, wherever you're working in some place. And if you link your plan B to your growth and the work that you're doing, it's quite practicable. How will you grow? What all things will you do? Which all courses you're planning to enroll? Where do you see yourself, let's say, after 5 years? That might be a question. If you're able to answer it judiciously, it's done. So plan B should be pragmatic, practical, achievable, and closer to your personality, I will say. तो आप ऐसे काम कीजिए, आप
प्रैक्टिकेबल प्लान बनाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आप ऐसे हवा हवाई बातें मत कीजिए। कई लोग कहेंगे कि सर मैं ठीक है, आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, आई विल प्रिपेयर फॉर CGL, आई विल प्रिपेयर फॉर, बिकॉज उनमें एज लिमिट बहुत ज़्यादा है। बट दैट डजंट मेक यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, इट रादर मेक्स यू अ वेरी पुअर कैंडिडेट, बिकॉज you're so whimsical, you see, you're so impractical. So it doesn't give the interviewer a confidence in you. That you're basically interviewer हो चाहे GT हो चाहे psychologist हो, they are actually reading the shades कि शेड कौन सा आ रहा है, एक पर्टिकुलर OLQ में कौन सा शेड इसका निकल के आ रहा है। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, उससे शेड क्या बनता है उस पर हो जाते हैं कि आप जो है बोल रहे हैं उसका क्या आशय हो सकता है। जैसे आप कहें कि सर एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्लान, वेयर विल यू पुट इट डाउन, ही विल इमीडिएटली पुट इट डाउन इन लॉजिक, pragmatism, effective intelligence, he'll put down 2 factors straight away. फैक्टर 1 क्लोज हो गया। मेरे को नहीं लगता कोई भी बंदा रिकमेंड हो सकता है विद फैक्टर 1 क्लोज्ड, जिसका EI RA डाउन है तो उसको कोई असेसर रिकमेंड करता है, ऐसा होगा नहीं। दैट्स व्हाई द कंटेंट पार्ट, लाइक if there is a group discussion and there is a discussion, for example, on uniform civil code or in one nation one election, what is the content coming out of you? It shows your intellectual curiosity. It practically opens a factor 1, your reasoning ability, your logic, your understanding of the subject, your effective intelligence. It opens on that has to be open, that can't be closed. It can't be possible for any assessor to recommend a candidate who is closed by mind, planning and organizing. That is factor 1, your mind, your planning skills, your organizing. वही closed है तो मैं उसको ऑफिसर कैसे बना सकता हूँ? नहीं बन पाएगा ना। प्लान भी बनाइए अपना और बहुत जेन्युइन बनाइए। मैं बता रहा हूँ, आप जब सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं CIQ1 में, वो पहले यही सुनता रहता है कि प्लान क्या है, प्लान क्या है, प्लान क्या है। अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा? कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर मेरा प्लान कुछ नहीं है, मेरे को तो फॉर्म में ही जाना है। हाँ, वो मान रहा है इस चीज़ को, तभी तो आप वहाँ बैठे हैं। वो देख भी रहा है कि आप इतने अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, परंतु वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड है कि व्हाट आर द ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस। ऑप्शंस बोल रहा है, वो ऑप्शन थोड़े बोल रहा है। तो एक सिर्फ रे आशिक की तरह अगर आप सिर्फ वन वे चल रहे हैं कि मैं सिर्फ फौज में जाऊंगा और नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये आपको बहुत स्ट्रांग नहीं, आपको बहुत इम्प्रैक्टिकल कैंडिडेट बना रहा है। प्रैक्टिकलिटी क्यों चाहिए और प्रैक्टिकल बातें कीजिए एंड अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रैक्टिकेबल, अचीवेबल, सूटेबल प्लान भी बनाइए और सोचिए कीजिए। वो आपकी कैंडिडेचर को बहुत अच्छा बना देता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे और खूब बातें करेंगे। मैं बहुत दिनों से थोड़ा गायब था, आई वाज लिटिल बिजी हियर एंड देयर, और हम छोटी छोटी ऐसी बातों पे करेंगे। आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।